the acrobat diva. Please get your hands together, ladies and gentlemen, for Aamir Khan and Katrina Kaif. Well, Katrina stole it from me. All right, so... She wanted my hat, so she stole it from me. But I've made it disappear from her head. So I think we should bring it down by magic. Right, so magic it is. Ladies and gentlemen, here we... But what we also have is something special underneath that. The Dhoom tablet. Ladies and gentlemen, presenting the Dhoom tablet that we take the merchandise experience to the next level as well. This, ladies and gentlemen, beautifully crafted, exceptionally powerful smart device for the ever-seeking mind and for the playfully young iOS, Android and BlackBerry systems. But it's been on the iPhone for some time. So we are going to be presenting you... Chicago Police Department, come in. Suspect on a black bike heading east. Come in, chopper. Got any visual? No visual of suspect yet. We lost him. Not bad, yeah, for my first try. Chicago Police Department, come in. Suspect on a black bike heading east. Come in, chopper. Got any visual? No visual of suspect yet. We lost him. And now, ladies and gentlemen, may we request 50 product categories and 20 licensing partners. This is the beginning of an era of film merchandise in India. So, ladies and gentlemen, as Katrina presses the launch button, we request you all to join us in the countdown. So, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. and go! You know that thing must be 100 years old. You know, I'd really like to congratulate the marketing team and the merchandising team of Yashraj and the digital team. It's a fantastic array of products here. Come to you with the microphone. Please ask your question quickly and in short, and then we will also, if you can direct the answer to either Aamir sir or to Katrina. So where are the microphones actually? Just a second. Okay, I'll come into the crowd. Hi, ma'am. Working with Aamir sir was it was really good. Honestly, first I was a little skeptical. I had heard so much about him that he's so planned and meticulous, and he's very particular about things. I was a bit nervous, what it was gonna kind of be like. But from the first scene we did together in the film, I realized he's such a, we all know the star he is, but he's such a genuine actor, and he treats you just like that, just as another co-actor on the set, seeing what you can bring to the scene. And I really found that amazing and really enjoyed the experience. Only one small thing I realized is that Aamir doesn't like to turn very fast in the, at a height. So in some of the songs we were doing, I could see that, he didn't really like that spinning. But apart from that, I think everything was amazing. Good question. First way I'd like to try and propose a change
is, if God willing, inshallah, The Whom is a big hit, Amir can dedicate a letter to me thanking me for my contribution. How's that? He can say, I give you credit. But I don't have to wait for the hit for that. Oh. See, that's sweet. He already gives it to me. No, seriously, I understand what you're saying, but at the same time, I feel that it's also deserved in a way. I think everyone gets what they deserve. So if if the hero or the actor is taking is more talked about after the film, then I guess it's deserved. And if Actually, I have something to say for this. sorry, wrong answer. Sorry, have you finished? I finished. Okay. When you say that the hero takes the credit, actually, I don't think any hero takes the credit and runs away. So, what happens is that, according to me, filmmaking is an activity where a number of creative people come together and work together, and everyone contributes. What happens is sometimes we as an audience, and I'm counting myself as an audience now, we as an audience look at a film and we tend to give credit as opposed to that one person taking it. So I might give credit to a particular actor or a particular technician in a film. But the fact is that actually everyone has contributed together. But as an audience, sometimes we get attracted to one aspect of a film and we end up giving credit or maybe overdue credit to that person. I think what happens is actors usually become the face of the film. So in that sense, we also get blamed if it doesn't turn out well. But again, I think the blame also ought to be shared. Yeah, I think it honestly is the way the industry has been for some time. Having said that, I do see a change happening. As you said, I think that there are women and actresses who are getting their due credit, and what they deserve out of the film, they're getting it. And I think the industry in general is changing a lot. I think that you're seeing a lot more of teamwork. You're seeing a lot more women-orientated films and films where women have stronger roles. So I think it's a process which will change on its own, and it will eventually even out. I think maybe not. I don't know if it's about the romance. I think what the audience wants to see nowadays is something which is energetic, which is exciting, which is a good story, and which is a good film. If you look at the range of films which have worked in the last year alone, and including the last 2 years, if you want to take, you see everything. You see a range of a Chennai Express to a Barfi to every kind of a different kind of story you can imagine. So I think it's you're talking about credit also. I think we should honestly try and focus on making a good film and doing good work as an actor, and the credit will follow you eventually on its own. Well, I'm happy, but I have to confess that I'm not really into yeah, it's nice. I think it's nice for the fans. I think it's nice for, I would like to, as a fan, own certain things for films and, maybe actors. Like, I would love to have Harrison Ford's whip from the Indiana Jones series. I think it's good for the fans then when they get to own a piece of something that they love. So it's wonderful that, Yash Raj's team has come up with the largest ever. Let's see how it does. I think this is the first time that in India we are trying something on such a large scale, and I'm keen to see how people respond to that. I'm afraid I was not. So any credit for the quality of the game should go to the people who designed it, and I saw it a couple of days back myself for the first time, and you're right. I'm quite concerned about the quality of anything that we come out with, and I was really pleased to see that it's really well-made game. So I liked it myself, yeah. Thanks, Snoop. Well, Yeah, why do you have to get me in trouble? well, no, they didn't. Actually, they didn't come in the way at all. I love tall women. Yeah. I just love tall women. Well, no, it's okay. I'm wearing heels now. I mean, it's not something that you do in the film, or if your character doesn't require it, then you don't do it. But I'm doing it now. Well, it was a very special evening, and Sachin and Anjali were great hosts, and everyone had a great time in celebrating such a unique career of Sachin's. We had a great time. Well, I think dolls, though, in this case, we've made only for Katrina and me.
But I think that that's a very valid question. I think that Abhishek और जय और अली जो किरदार हैं धूम सीरीज के वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और यकीनन उनकी भी डॉल्स बननी चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हैं. We'd be in big trouble if their way of romance scene was all the same. We'd have some very similar films going on. No, they're all very, very different. I don't see them as you say, you know, the surname is the same, but of course as actors even their style is extremely different, and yeah, they're different. नहीं मेरे लिए स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, हैबिट है. सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ. हाँ भाई रेडी. हाँ भाई क्या सैफ से शादी? हाँ शादी के पहले बहुत अलग थे, अब बिल्कुल बदल गए. देखिए ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं इसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहता. वैसे 3 हीरो प्रोजेक्ट होने वाली थी. ओरिजिनली स्क्रिप्ट में 2 कैरेक्टर्स थे, सैफ और मैं, और तीसरा हीरो ये पुनीत. करेक्ट. वो डायरेक्टर तो था नहीं सेट पे कोई. Director was bullied by both actors. Saif just met me and he told me, why are you taking my name everywhere for free publicity? But we need publicity, which is why we are doing this. And नहीं वो एक बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट थी. जो पहला ड्राफ्ट था पिक्चर का बिल्कुल अलग था. एंड फॉर सम रीज़न दैट डिडंट हैपन. देन आफ्टर विच वी केम डाउन टू गोरी तेरे प्यार में एंड स्टार्ट मेकिंग दिस. एंड हु बेटर देन इमरान. सो आई वेंट टू इमरान विद द सब्जेक्ट. उसने मुझे बहुत भगाया. फिर मैं दूसरे एक्टर्स के पास गया. पेट पे लात मारी, पिछवाड़े पे लात मारी. उसके बाद दूसरे एक्टर्स और पुनीत विसे टू पर लात मारी. उसके बाद मैं दूसरे एक्टर्स के पास गया, उन्होंने भी मुझे बहुत भगाया. फिर मैं वापस इमरान के पास गया और इमरान ने सब्जेक्ट अप्रूव किया. दैट्स हाउ दिस हैपेंड. गोरी को कन्विंस करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा. 15-20 मिनट लगे. 15-20 मिनट. उन्होंने एक नरेशन सुनकर हाँ कह दी, पर वो उस वक्त की बात थी, अब वो गायब हो गई हैं. 3 दिन पहले तक मैं काफ़ी नर्वस था. आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे प्रमोशन वगैरह अच्छे चल रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं टू द प्रोमोज, टू द सॉन्ग्स. तो नर्वसनेस थोड़ा कम हुआ है. बट सच कहूँ तो मुझे 5 साल हो गए और वो नर्वसनेस कभी पूरी तरह से जाता नहीं है. इट्स ऑलवेज देयर इन द वीक ऑफ रिलीज. So I'm lost in the questions. Thesis. First question is how much does it matter to a director? It matters a lot. Yeah, it matters a lot, which is why I'm here with both my actors. And that's why, you know, we go all out to promote in whatever way that we can. The idea is to communicate what the film is about, and we've just been faffing and not communicating what the film is about. But to be honest, it's a really nice love story. It's a really sweet love story. It's about a boy who goes into a village to find a girl, and there is an underlying social message which Imran will deny. But it's all said in fun. It's all humor, so you'll get entertained with the film, and that's how I'm promoting the film. Both. I mean, a film with only star cast. I choose one, yeah. A film with content as well. We have both. I mean, I'm happy when I see the final product. Karan saw the final product. We did a focus group screening with the final product. Lots of focus groups, and they were very happy with what they've seen. I'm hoping when you see it, you'll connect with it as well. मेरा कैबिन धर्मा में अभी भी है. Indication अच्छा है. The film is nice, but I think what's nice about गोरी तेरे प्यार में is that अगर आप फिल्म देखें तो उनका फर्स्ट हाफ कम्प्लीटली अर्बन है.
It's one of those films where you can relate to IIT love stories. Youngsters will relate to the first half of the film. The second half है उसमें पूरा twist हो जाता है. Normally films have a curse of the second half कि क्या हो रहा है second half में. यहाँ जो story पूरी पलटती है, it becomes even more interesting. I think the second half of the film is more fun for me personally. एक बहुत जो कहते हैं ना ब्लिंक एंड यू मिस इट, एक क्लब का सीक्वेंस है बैकग्राउंड में, अगर आप गौर से देखें आप उन्हें पकड़ सकते हैं. मैं ये पसंद करता हूँ, और ना सिर्फ अवंतिका, मेरे दोस्त भी बहुत स्पेशल अपीयरेंसेस करते हैं मेरी फिल्मों में. तो आई लाइक इट. व्हेन आई वॉच द फिल्म आई फील लाइक इट्स एन इनसाइड जोक कि मैं लोगों को स्पॉट कर सकता हूँ, वहाँ भाई अजीत बैठा है, हाँ ये बैठा है. गोरी आ गई थी. Yes. एक स्टॉप ब्लॉक में कट मिलेगा सर. You all finished the interview? अच्छा, रेडी स्पेशल इफेक्ट्स में डालना है? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं है, बट आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी स्वीट फैमिली एंटरटेनर. ये फिल्म जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं. ये फिल्म में ना ही इट्स अ स्वीट फिल्म और ऐसे टाइप की फिल्म अभी आई नहीं है बहुत वक्त से, जो हम हॉलीवुड में भी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बताते हैं. पिछले 2-3 महीनों से बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, एंड देयर हैज़ नेवर बिन दिस रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ फिल्म, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग क्योंकि बहुत ही स्वीट सी फिल्म बनी है, बहुत ही एंटरटेनिंग है. जब लोग थिएटर में जाएंगे दे विल नॉट कम आउट एंड से, दे विल कम आउट एंड से कि बहुत मज़ा आया फिल्म देख के. Yeah, so it's the Kareena Kapoor that you like to see. It's the Imran Khan that you like to see. Both of them are playing characters that you'd like to see them play and enjoy. So that's what we've done, and we made a fun film in that sense. I think Imran is a lot more fun, and he has definitely opened up a lot as an actor. And in this film, मुझे लगता है ये इमरान की बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म किया है एकदम, आई थिंक बिल्कुल लाइक अ हीरो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हिज फैंस वांट टू सी हिम एज. नहीं, वीवर कल हम लोग कैलकाटा में प्रमोशन कर रहे थे, तो दे हैड आस्क्ड मी इफ आई वुड डू अ बंगाली फिल्म. मैंने सिर्फ ये कहा दैट आई डोंट नो द लैंग्वेज, बट द बंगाली कल्चर इट्स वेरी enriching. They have a lot of tradition that they follow. Also, I like the kind of films they make. Visually बहुत अच्छे होते हैं, and there have been such great directors. Coming back to गोरी तेरे प्यार में, it's based in Bangalore and the second half is based in Gujarat. In Gujarat. और मैं गुजराती फिल्म तो नहीं कर पाऊंगी. भाई कहना चाहूँगा कि शूट के दौरान मैंने सिर्फ 4 मटके तोड़े, जो मैं बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट मानता हूँ. आप बैलेंस कर सकते हैं मटके को? मैंने ट्राई किया और मैंने सिर्फ 4 तोड़े. But the script has to be good. Script के ऊपर डिपेंड होता है. I think I have really enjoyed myself. This has been the best shooting experience of my career with Imran and Puneet. They were all such a young team, and I think that's why जिस तरह जब फिल्म पर्दे पे आएगी तो वैसे लगेगा कि इतना मज़ा आ रहा है फिल्म देख के. तीनों ने कैसे हंसी मजाक से फिल्म बनाई है. ये फिल्म, it's not like with some people, some directors I think take themselves too seriously, but this is not that kind of film. This film is lots of fun. मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं दोबारा अपनी फेवरेट हीरोइन के साथ काम कर रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ, करण के साथ काम कर रहा हूँ. तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत स्पेशल फिल्म है. इट मीन्स अ लॉट टू मी पर्सनली. गोरी तेरे प्यार में. माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि सलमान खान यांचं मनपूर्वक स्वागत. मी राजसाहेबांना विनंती करतो की आपण शिवप्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करावा. मनसे अध्यक्ष श्री राजसाहेब ठाकरे आणि शिवप्रतिमेस पुष्पहार. जोरदार टाळ्या. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. या ठिकाणी उपस्थित आहेत मनसे अध्यक्ष श्री राजसाहेब ठाकरे, अभिनेता सलमान खान, अजित भुरे, अभिनेता कुणाल विजयकर, जितेंद्र ठाकरे, त्यासोबत अभिनेता सलमान खान, सगळ्यांचा लाडका दबंग अभिनेता, प्रत्येक मनावरती अधिराज्य गाजवणारा सलमान खान. पारंपरिक पद्धतीचं स्वागत. कोळी समाजाची
विनंती आहे. कृपया आपण शांतता बाळगा. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे मनसे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांचं. पुष्पगुच्छ देऊन माननीय राज साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी मनसे आमदार नितीनजी सरदेसाई यांच्या शुभ हस्ते. स्वागत या ठिकाणी मनसेचे आमदार माननीय नितीनजी सरदेसाई यांच्या शुभ हस्ते. मी सर्व फोटोग्राफर्सला विनंती करतो की आपण सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे आणि आपल्या मुंबईकर नागरिकांसाठी या ठिकाणी माननीय राजसाहेबांना त्यासोबत अभिनेता सलमान खान यांच्या स्वागतासाठी ही संपूर्ण मुंबईकर जनता उपस्थित आहे. सर्व फोटोग्राफर्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मनसेचे चित्रपट सेनेभोपकर आणि विनंती करतो की सर्व फोटोग्राफर्सना पुन्हा एकदा फोटोग्राफर्सनी कृपया थोडंसं मागे व्हायचंय. सर्व फोटोग्राफर्सना विनंती करतो मी अभिनेता सलमान खान यांना विनंती करतो की आपण या सर्व मुंबईकर कोळी बांधवांना शुभेच्छा द्यावा. अभिनेता सलमान खान. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? हाय हाय पे सबसे ज्यादा रिएक्शन. अगर हाय पे रिएक्शन है तो व्हाट्सएप पे क्या होगा? यो वाह यार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए हुए. यहाँ से रोज हमारी पासिंग होती है. मेरी माँ की पैदाइश माहिम की है. मेरे फादर इंदौर से आए थे. बांद्रा में मरीना गेस्ट हाउस में रहे. अजीत साहब एक्टर थे ना, अजीत साहब विलेन, मोना डार्लिंग, वो भी माहिम में रहते थे. मेरे डैडी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और मुलाकात हो गई मेरी मम्मी से. उन्होंने एक दूसरे को देखा. मम्मी महाराष्ट्रन फैमिली से, डैड मुसलमान फैमिली से. बहुत सारे पंगे हुए. इवेंचुअली जाके मैं हुआ. मेरे कामयाबी के लिए मेरी मम्मी आती थी यहाँ पर माहिम चर्च नबीना के लिए. मेरे फादर जाते थे बांद्रा मस्जिद. तब जाके आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उन दोनों का प्रेम का नतीजा है और प्रार्थना और दुआओं का. तो माहिम बांद्रा क्या हुए? मेरे मम्मी डैडी हुए. ना माहिम बांद्रा खार डांडा से आगे जाना है, ना जाना चाहूँगा. यहाँ पर आंखें खुली हैं, यहाँ पर आंखें बंद होंगी. बस दुआ करता हूँ कि हम जैसे हैं वैसे रहें, खुश रहें, एकता के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें. बहुत सारी चीज़ें याद हैं. हमारा दूध माहिम से आता था. हमारे नाना रोज सुबह माहिम से जलेबी लेके बांद्रा आते थे हमारे लिए, गर्मा गर्म जलेबी. मेरे डैडी मेरे मम्मी का रोमांस यहाँ के फालूदा के साथ स्टार्ट हुआ. मेरी मम्मी ने मेरे डैडी को अंदर किया वो छोटी कोलबी खिला के, सुक्कट. तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा कनेक्शन है माहिम से, कोलियों से. यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फिशिंग की है.
प्रकाश है यहाँ पर कहीं पर? वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे जेट स्कीज संभालते थे, यहीं पे मेरे जेट स्कीज पार्क होते थे। बहुत यहाँ पर खाना खाया मैंने, मुझे यहाँ के खाने का टेस्ट पता है। मेरी माँ भी वही खाना बनाती हैं, बड़ा प्यार मिला है इस खाने में। और खाने के साथ हम कुछ और भी मिलाते हैं जो आज नहीं मिलाएंगे, और जो मिलाएंगे तो घर पे जाके मिला के खाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। या ठिकाणी मनसेचे स्थानिक शाखाध्यक्ष जमलेल्या माझ्या सर्व मराठी बांधवांनो, बहिणींनो आणि मातांनो, मी मला वाटतं हा इथं चौथं वर्ष आहे, मीच 4 वर्ष येतोय. त्याच्यामुळे ह्या खाद्यपदार्थांबद्दल बोलण्यासारखं आता काही नाही, माझं बोलून झालंय. मी फक्त सलमान माझा खूप चांगला मित्र आहे. तो परदेशी असताना मी त्याला अगोदर फोन करून सांगितलं, म्हटलं असं असं एका फंक्शनला तुला यायचं आहे, मला नक्की. आणि परदेशी असताना तो आज लवकर आला आणि लवकर येऊन कार्यक्रमालाही लवकर आला. त्याच्यामुळे सरसकट जे काही लिहिलं गेलं जातं की सलमान सेटवर उशिरा येतो, तर माझ्यामध्ये ते खोटं आहे. सलमान वेळेवरती येतो. माझी खरं सलमानची ओळख ही नंतरची. माझी पहिली ओळख सलमानच्या वडिलांची. आपण सगळे सलमान खानचे तुम्ही डाय हार्ड फॅन आहात, पण मी सलमानचे वडील सलीम साहेब यांचा डाय हार्ड फॅन आहे. आणि माझ्या अनेक चढ उतारामध्ये सलीम साहेबांनी मला खूप आधार दिला. खूप अनेक गोष्टी त्यांनी मला सांगितल्या. एका वडिलकीच्या नात्याने, एका शिक्षकाच्या नात्याने मला त्यांनी अनेक गोष्टींच्या वेळेला आधार दिला. आणि त्यांच्याशी बोलत असताना एके दिवशी माझी सलमानची ओळख झाली. आणि मग ते ऋणानुबंध वाढत गेले. आणि त्या सगळ्या गोष्टींवरती आज सलमान इकडे या कार्यक्रमाला आला. मी फक्त त्याचे आभार मानण्यासाठी म्हणून मी इथे उभा आहे. नितीन सरदेसाई यांना शुभेच्छा देण्यासाठी, तसेच माझे मित्र साजिद नाडियादवाला हे देखील आज वेळात वेळ काढून इकडे आले, त्यांचे देखील मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि आपल्यामध्ये आणि जेवणामध्ये मी फार वेळ न लावता मी आपल्या सर्वांची मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी आपल्या मनसेचे स्थानिक शाखाध्यक्ष विनय आखरे यांची इच्छा आहे की आपण रासाहेबांचं स्वागत करावं. या स्थानिक शाखाध्यक्ष आहेत आपले, त्यांची इच्छा आहे की आपण रासाहेबांचं स्वागत आपण या ठिकाणी करणार. विनय आखरे मनसेचे शाखाध्यक्ष, या माहीम आणि वांद्रे परिसरातील आपल्या आठवणी जागृत केल्याबद्दल या ठिकाणी यहाँ पे देखिए पीछे से क्लियर गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया? Use your applause
Sachin Joshi and Sunny Leon. Come on, people, everyone! कभी जो I feel like I hit a jackpot. आप कैसे हो? सब ठीक है? Everybody having fun? जब मैं बॉलीवुड में आई थी, ये मेरा जैकपॉट है. So thank you. Fantastic. नसीब भाई का क्या कह सकते हैं हम? Amazing actor, so versatile, so talented, so unpredictable. You never know वो क्या करने वाला है. Every time the camera rolls, you never really know what you're going to get. Very, very, very interesting to work with someone like Naseer Bhai. One of my favorites. Talking about jackpot, it's the jackpot for all of us. और आपका भी jackpot लगेगा जब आप फिल्म देखने जाएंगे. This is the moment in the making. The music launch of Jackpot officially done in Mumbai in Shitich 2013. You know what? You know what? This is the official. It's not going to be that much only. We have Jackpot t-shirts as well. We have the CP of the fest, Shitich. Make some noise, clap your hands, guys. Satyabhai, thank you so much for being here. It's an honor. Clap some hands, Satyabhai. Come on, make some noise. All right, Ayush. I don't know if I'm targeted. Again, it's a censor board's job to see what's fit for television, what's fit for cinema, what's fit for young adults to watch. This is a movie that's not a certificate movie, so they have to be really careful on what the subject matter is, and it's really that's their job. But at the same token, I don't think there's anything in this movie that requires censorship. It's a very nice, family movie that everybody can watch and see. बिल्कुल मतलब सनी लियोन डेफिनेटली एक जैकपॉट है खैर लेकिन मेरे लिए वो जैकपॉट से पहले वो एक दोस्त है और किस्मत अच्छी रही कि साथ में काम कर रहे हैं इस फिल्म में और एक अच्छी फिल्म बन के आई है जैकपॉट और हमने हमारा काम किया बखूबी और एंड आई लीव इट टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि अगर मेरा जैकपॉट लगा या नहीं ये ऑडियंस डिसाइड करेगी. बहुत मज़ा आया. मैं बचपन से बहुत हाईवे पर घूम फिर चुका हूं और मुझे एक अनुमान और एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है देश के कोने कोने में जाने का. तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये मौका मिला. हाईवे फिल्म ने ये मौका दिया कि मैं फिर से हाईवे पर दूर दराज और सुंदर जगहों पर जा सकूं. एक्चुअली जब आप हाईवे पर ऐसे चलते हैं ज़ाती ज़िंदगी में तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ आती रहती हैं. मेरे दिमाग में तो ऐसे आती हैं. तो कुछ कहानियाँ उसमें हाईवे पे भी होती हैं. तो ये कहानी आई थी. फिर मुझे लगा कि इस कहानी को ज़रूर बनाना चाहिए बिकॉज इस एक कोई ख़ास बात है जो ये कहानी कहना चाह रही है. तो फिर वो क्योंकि कहानी फिर बन गई उसके लिए फिर फिल्म भी बन गई. बहुत सारी नई चीज़ें मुझे दिखी हर एक स्टेट में. जैसे कि पंजाब में जो सूफ़ी कल्चर है या जो वहाँ की एक स्पिरिचुअल कल्चर है ना पंजाब का वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया. हरियाणा एक बहुत पुरानी जगह है. मेरे ख्याल से सबसे पुरानी जगह इस देश की हरियाणा है और उसकी एक अजीब सी बहुत ब्यूटी है इस पुरानेपन की. वो मैंने हरियाणा के बारे में इस बार डिस्कवर किया. और जम्मू एंड कश्मीर जो मैं कई बार जा चुका हूँ जो मेरा फेवरेट स्टेट है उसमें भी मैंने नोटिस इस बार देखा कि अलग अलग तरह के अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं जो कश्मीर के अंदर आते हैं मगर अलग अलग ज़बान में बात करते हैं. जैसे कि हम लोगों ने इस बार कश्मीरी जो गुजर होते हैं जो गुजर कश्मीरी बकरवाल होते हैं उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है. तो ये नई चीज़ मैंने इस दफ़ा
कश्मीर की बारे में देखी। और बाकी जो स्टेट्स हैं वो राजस्थान है, जैसे राजस्थान जिसको मैं अब ग्रीन स्टेट कहता हूँ, एक ज़माना था जब वो रेगिस्तान था, बट अब वो उन्होंने बहुत अच्छे से तरक्की की है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुशहाली और ग्रीनरी आई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ये करती है, खुश करती है कि एक स्टेट ने इस तरह से किया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में ये मुझे लगता था कि ये लोग इन लोगों ने पूरा इतना मुश्किल जगह है, सारी सड़क वगैरह बड़ी मुश्किल है, बट हर जगह फ़ोन का सिग्नल अक्सर रहता है एक्सेप्ट फॉर काजा एट्सेट्रा। सो बड़ा मज़ा आया मुझे इन सारे जगहों पे जाने पे। देखिए पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगहों पे जाएं और आपको मालूम होता है यहाँ होटल्स हैं नहीं, मगर यहाँ पर जो आपको फिल्म में या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जो चीज़ें मिल सकती हैं वो और कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरे पास लोग वही आए हाईवे बनाने के लिए जिनको खुद ऐसा कीड़ा था कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पान की टपरी नहीं होती और जहाँ, तो मगर वही होता है ना कि जब आप फ्रंट फुट पे होते हैं, पॉजिटिवली किसी भी चीज़ को सोचते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। और अगर नहीं सोचते हैं तो फिर ये शूट भी मुश्किल हो सकता है कि मैं ऑफिस में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आलिया के लिए जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी वास्तविक था, रियल था, क्योंकि वो ऐसे जगहों पे जा नहीं चुकी थी पहले तो, और हम लोगों ने शूटिंग भी एक ही सफ़र में की है। तो एक तरह से जो उनकी कहानी में उनके साथ, उनके कैरेक्टर के साथ हो रहा है, जो चीज़ें वो देख रही हैं, उसी तरह से आलिया के साथ ज़ाती ज़िंदगी में भी हुआ, जिससे कहानी को काफ़ी, जो फिल्म को काफ़ी हेल्प मिली। रणदीप हरियाणा के हैं, रोहतक के हैं, और वो उस जगह को जानते हैं, मगर हमने सिर्फ हरियाणा में नहीं शूट किया, हर जगह किया, मगर वो जानते हैं कि शहर के बाहर की ज़िंदगी क्या होती है। उनके कैरेक्टर को भी ये बात पता होनी थी, इसीलिए उनको फिर शूट कास्ट किया गया। नहीं, बाकी ऐसे सजेशन तो हर आदमी देता रहता है, मगर उसके साथ ये ज़रूर था कि उसको समझ में आता था कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो एक दूसरे के विपरीत भी लगे दोनों कैरेक्टर्स पिक्चर के अंदर, और दोनों से विपरीत होने से ड्रामा बहुत क्रिएट हुआ। देखिए क्या है कि इस फिल्म का म्यूज़िक A.R. रहमान कर रहे हैं, और उसमें हमारे ओरिजिनल अपने गाने हैं, 7 गाने हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट पिक्चर के अंदर हम लोगों ने अक्सर फोक म्यूज़िक के अराउंड सीन बनाया है। वो ये एल्बम का जो होगा ना, उसके अलग ये चीज़ें हैं। हाँ, ये हो सकता है बिकॉज ये महसूस होना चाहिए कि यहाँ मैं जा चुका हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं, मगर उससे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा अगर ये लोगों को अनुभव हो कि यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं या यहाँ जाना मुमकिन है, तो हम जाएं, मैं भी जाऊंगा। और बहुत अच्छा होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी जगहों पे जाना शुरू कर दें। ऐसी बहुत सारी जगह है यार, मुझे कल्पा एक जगह है हिमाचल में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जो बहुत इस तरह से याद आती है। हर जगह का टेस्ट अलग होता है, और वो एक्चुअली वो खाने का जो एक दौर था, वो अनफॉर्चुनेटली खाने को हम हाईवे डायरीज़ में नहीं रख सकते। अगर वो रख सकते तो वो और भी स्वादिष्ट हो जाता हाईवे डायरीज़। थैंक यू। ये लाइट बंद Well, it looks very fresh and it's very lovely, and I'm a big fan of Kareena, so I'm really looking forward to seeing the film. Now don't do an interview, no, ask me about the movie. Well, Kareena ke liye, Puneet ke liye aur Imran ke liye, I wish them all the best. I loved his I Hate Love stories, so I'm really looking forward to what Puneet has made now. Bahut interesting laga. Very young, very nice, very fresh, so I want to see.
अनिल सर राइट साइड ऊपर 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 राइट साइड ऊपर सर 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 राइट में पीछे चल पीछे अभी फ्रेंड्स का फिल्म है ये। पुनीत, करण, मनीष मल्होत्रा कपड़े की है, इमरान। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट। I'm not carrying it with my hands. Sophie again. Sophie again. Wait. रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। वी ऑल वर हूटिंग एंड क्लैपिंग एंड बस नाउ फिंगर्स क्रॉस की ऑडियंस को भी इतनी पसंद आई। धत तेरी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड थैंक गॉड धत तेरी की हुआ मेरी जिंदगी में, बिकॉज इट्स गोइंग रियली वेल एंड रिस्पॉन्स बीन रियली गुड। वेल एज यू कैन सी my family has hit it. I'm here with my cousin and the son and the husband, and the good thing is even the couple's liking, I'm liking, and even we have a 16-year-old boy who's laughing in the film and enjoying. So it shows it's a mass film, it's a family entertainment, and I think such films really do well, and it's quite I'm sure because she must be having some work, but you can't miss Kareena's absence because the film is about the Gori and how Imran is after her and chasing her through village, and Kareena and Imran are fabulous in the film. Well, even I heard that. You should ask them about this. Confess, well, there is someone in my life, but I'll let you guys know when I want to. फिलहाल बिल्कुल भी नहीं. I'm just about to finish Hum Shakal. We're going to do a second schedule, and after that in June we're going to start the next. So no item numbers. Actually, films are not commercial or uncommercial. या तो आपको पसंद आती है या नहीं आती है. तो मुझे पसंद आई. लाइट है, बहुत कुछ सेक्शन बहुत ही फनी है और गाने बड़े मजेदार हैं. इमरान ने क्या डांस किया है, मैंने उसको ऐसे कभी डांस करते हुए नहीं देखा है. दोनों बहुत क्यूट है फिल्म में. एक्चुअली बहुत क्यूट है. बहुत मजा आया. आई हैड माय होल फैमिली विथ मी. इट वाज रियली फन. The film is awesome. It's really lovely. और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. बहुत चीख रहे चिल्ला रहे थे लोग. People are having a great time in the theater, and it's a really lovely film. I'm very proud of it. And
इमरान कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? अरे यार मेरे दोस्त हैं, घर वाले, उनका रिस्पांस तो अच्छा ही होगा. असली रिस्पांस कल देखने को मिलेगा. आई फील वेरी हैप्पी, बट कसम से ये मेरे दोस्त हैं, घर वाले हैं, तो वो तारीफ करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन. अरे 5 और 5 क्या आप मेरे से पूछ रही मेरे हस्बैंड की फिल्म के बारे में एक दिन पहले. दोनों दे आर फैबुलस टुगेदर. Avantika, please, this side also. Thanks to Kareena also. First time, Thanks to Kareena. Live interest from this film.